جو ہے وہ ابھی بھی عورتوں کے حقوق پہ بات کرنے اور اس کے اوپر رپورٹ کرنے کی جرت بھی رکھتی ہے اور ارادہ بھی. سو اس کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. تھینک یو. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 8 مارچ عورتوں کا عالمی دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن 1920 کے اندر محنت کش عورتوں نے اپنا پہلا جلسہ نکالا تھا. اس دن کی جو امپورٹنس ہے وہ ہم اس نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دن پاکستان کی جو سیاست ہے عورتوں کے حقوق کی، اس میں بھی ایک بہت اہمیت کا دن مانا جاتا ہے. یہ وہ دن بھی ہے کہ جس دن دنیا بھر کی خواتین اپنے معاشی، سیاسی، سماجی اور پدر شاہی کے خلاف اور پدر شاہانہ رویوں کی وجہ سے جو ان کے حقوقوں کی تلفی ہوتی ہے، ان کے خلاف اپنی آواز بلند کرتی ہیں اور وہ اس دن اپنے حقوق کے لیے دوسروں کو بھی متحرک کرتی ہیں اور خود بھی متحرک ہوتی ہیں. عورتوں نے برے زمین پہ پاکستان کے بھی قیام سے پہلے جتنی بھی انڈیپینڈنس جو کہ برٹش راج کے خلاف تھی، ان میں خواتین نے بہت بڑا کردار ادا کیا. پاکستان کے قیام تک اور پاکستان کے قیام کے بعد بھی پاکستانی عورتوں نے، اسپیشلی جو فیمنسٹ خواتین ہیں، انہوں نے حقوق نسواں، عورتوں کے معاشی، سماجی، سیاسی حقوق کے لیے بہت ہی زیادہ جدوجہد کی اور جو عورتوں کا سوال ہے اسے منظر عام پہ لے کے آئی. آپ سب کو یاد ہوگا کہ یہ وہ عورتیں ہی تھیں جنہوں نے MRD کی تحریک میں جنرل ضیاء کو شکست دی تھی. یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے سندھیانی تحریک کا حصہ بن کے جو ڈیموکریسی ہے یا جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے اس کی بالا تری کے لیے جو ہے انہوں نے کوشاں کی اور انہوں نے کام کیا. 8 مارچ جس دن عورت مارچ اپنا ایک جلسہ یا اپنا ایک پروٹیسٹ جو رجسٹر کرتا ہے، یہ اسی ہی لیگیسی کی کنٹینیوٹی ہے جو کہ پاکستانی عورتوں نے پاکستان کے قیام سے پہلے بھی شروع کی اور پاکستان کے بعد بھی جس کو وہ آگے لے کے چل رہی ہیں. اس کے حوالے سے اس سال عورت مارچ اسلام آباد دوبارہ 8 مارچ کو اسلام آباد پریس کلب کے باہر بروز ہفتہ 1 بجے سے 4 بجے تک منعقد کیا جائے گا. ہم آپ کو اپنے اس سال کی جو تھیم ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتانا چاہیں گے. آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس وقت ہمارے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں اور ادھر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس سال کی جو ہماری تھیم ہے یا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فیمنسٹ سیاست بمقابلہ پدر شاہانہ ریاست. ہم جس ریاست میں جی رہے ہیں یا جو ریاست ہم پہ اس وقت حاکم ہے وہ ایک پدر شاہی کی تصویر بنی ہوئی ہے. اس پدر شاہانہ ریاست کے اندر کسی کے پاس بھی کوئی حقوق اب موجود نہیں ہے. نہ یہاں پہ آپ پروٹیسٹ کا کوئی حق رکھتے ہیں، غریب یہاں پہ پستا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی مظالم ہوتے ہیں اس کے باوجود یہ ریاست اندھوں کی طرح پڑی ہوئی ہے اور کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھا رہی. عورت مارچ اسلام آباد نے پچھلے کوئی 6 سالوں سے ریاستی جبر کا سامنا کیا ہے، جس میں ریاستی جبر کے ساتھ ساتھ جو مذہبی فرقہ وارانیت والے گروپس ہیں وہ بھی کافی متحرک رہے ہیں. 2020 کے اندر عورت مارچ کے اوپر پتھراؤ ہوا تھا. 2021 کے اندر جھوٹے بلیسفیمی کے کیسز کیے گئے. 2022 کے اندر ہمیں پروٹیسٹ کرنے نہیں دیا گیا، ہمارے راستے روکے گئے، ہمارے اسپیکر بند کیے گئے اور اس کے بعد 2023 میں ہمارا راستہ روکا گیا، ہم پہ لاٹھی چارج کیا گیا. 2024 میں ہمیں 1 انچ نہیں ہلنے دیا گیا اپنی جگہ سے. لیکن اس کے باوجود عورت مارچ اسلام آباد نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی جگہ اور اپنی سیاست اور اپنا جو اسپیس ہے اسے ہم کلیم ضرور کریں گے. ہمارا بھی انہی سڑکوں پہ، انہی شاہراہوں پہ، اس شہر میں اور اس کے پبلک اسپیسز پہ اتنا ہی حق ہے جتنا پاکستان کے مردوں کا حق ہے. ہم نے کئی کیسز کا مقابلہ کیا، ہم نے کئی ڈیفیمیشن کی کیمپینز کو سہا. ہمارے خلاف کچھ میڈیا کے
لوگ جو کہ میں مین اسٹریم نہیں لیکن کچھ جو دیگر انصار جو ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں کافی جو ہے وہ ایک ڈیمورلائزیشن کا سامنا تھا. سائبر ہراسمنٹ کے جو ہے واقعات ہمارے ساتھ ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم باہر نکلتے رہے ہیں اور ہم نکلتے رہے ہیں. اور ہم اسی لیے نکلتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ عورتوں کی سیاست اور عورتوں کے سوال پہ اگر ہم بھی نہیں بات کریں گے تو اور کوئی بھی بات نہیں کرے گا. اس سال کی تھیم اسی لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کو ایک متبادل سیاست دینا چاہتے ہیں جو کہ فیمنسٹ سیاست ہے. یہ وہ سیاست ہے کہ جس کے اندر جنسی بنیادوں پر برابری کا تقاضا کیا جاتا ہے. یہ وہ سیاست ہے جس کے اندر مرد, عورت, ٹرانسجنڈر افراد, ہماری مذہبی اور دیگر اقلیتیں سب ایک برابر اور ایک اچھے ایک محفوظ معاشرے میں سانس لے سکیں اور جی سکیں. عورت مارچ کے اندر شمولیت ہمارے لیے تو ضروری ہے کیونکہ ہم عورتیں ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس ملک کے اندر کیا کیا نہیں ہو رہا اور کس بے حسی سے اور خاموشی سے ان تمام مظالم کو دیکھا جاتا ہے اور ان پہ ایک اف تک نہیں کہی جاتی. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ جدوجہد پاکستان کے اندر جتنی بھی مزاحمتی جدوجہدیں ہیں ان سب کو یکساں کرنے کی ہمت رکھتی ہے, طاقت رکھتی ہے اور ارادہ رکھتی ہے. تو ہم تمام ہمارے جتنے بھی ہم خیال جماعتیں ہیں, ہم خیال لیفٹ کی جو تحریکیں ہیں, ہم ان سب سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ تک یہ آج پیغام پہنچ رہا ہے تو آئیں پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کے بقا کے لیے, عورتوں کے حقوقوں کے بقا کے لیے ہمارا ساتھ دیں. کیونکہ اگر عورت کو آزادی ملے گی, اگر عورت کے حقوق اسے ملیں گے تو یہ ایک بہتر ایک اچھے معاشرے کی جو تشکیل ہے اس میں یہ ہمیں ساتھ نبھائے گا. اور عورتوں کے جب حقوق ہوں گے, جب جنسی طور پہ برابری ہوگی, وہ برابری مردوں کو بھی بہت فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف ایک طبقے کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا معاشرہ تشکیل کریں جس میں سب برابر ہوں, جس میں سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بھی رکھیں اور ایک دوسرے کی طرف جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, ہم ان ذمہ داریوں کو بھی نبھائیں. اس کے ساتھ ہم یہ اب آپ کے سامنے ہمارے اس سال کی جو ڈیمانڈز ہیں, میری ساتھی یہاں پہ ساری کی ساری موجود ہیں اور ایک ایک کر کے وہ آپ کے سامنے ڈیمانڈز پڑھیں گی. آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ان ڈیمانڈز کو سنیے, انہیں لکھیے, انہیں رپورٹ کیجیے. آپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہماری ڈیمانڈز کو آپ مثبت طریقے سے آگے بڑھائیں تاکہ یہ ایوانوں تک ہماری آواز پہنچ سکے. ایوانوں تک آواز پہنچانا میڈیا کا کام ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, آپ سے امید ہے کہ آپ اپنا بھی کریں گے. سو پلیز ان ڈیمانڈز کو دھیان سے سنیے اور اگر آپ کو کوئی سوال ہوں گے تو وہ ہم اس پورے سیشن کے آخر میں ہم سوال جواب کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. میں اب دعوت دیتی ہوں زینب کو کہ وہ اب اگلی ڈیمانڈز پڑھیں. جی السلام علیکم. ہماری جو یہاں پہ پہلی جی میرا نام ہدا برگڑی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ زینب جمیل ہے. شکریہ. ہم جو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں, جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم خواتین کے لیے ایک صنفی برابری کا جو معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں. تو ہماری جو جس پہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے وہ صنفی بنیاد پر پدرشاہانہ تشدد کا خاتمہ. ہم پاکستان میں ان تمام خواتین کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں جنہیں قتل کیا جاتا ہے, مسخ کیا جاتا ہے, ہراساں کیا جاتا ہے. ایسی خواتین یا لڑکیاں جنہیں اسمگل کیا جاتا ہے, جن کے زبردستی مذہب تبدیل کروا کے ان کے ساتھ زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں. ایسی خواتین جن کے ریپ ہوتے ہیں اور سال بھر ہم ایسے کیسز جو ہیں وہ ہمارے سامنے رپورٹ ہوتے ہیں اور وہ انصاف کی منتظر رہتی ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں خواتین مساوی اور محفوظ زندگی گزار سکیں. ہم ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد کو ایک قومی ایمرجنسی قرار دی جائے اور قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کو بہتر بنانے کے لیے اسٹریٹجک اقدامات کیے جائیں تاکہ پدرشاہانہ تشدد کی اشکال کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کو فروغ دیا جا سکے.
ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاستی ادارے اپنے عدالتی اور تفتیشی عمل کو بہتر بنائیں تاکہ خواتین کے خلاف جرائم کی سزا کی شرح میں اضافہ ہو. صنف پر مبنی جرائم کی تفتیش کو باخبر انداز میں کرنے کے لیے پولیس کو صنفی حساسیت کا حامل ہونا چاہیے اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے مناسب طریقے سے تربیت دینی چاہیے. شکریہ. میں اگلے مطالبہ پڑھنے کے لیے اپنی ساتھی کو کہوں گی. نام دو بتائیں. مائک وہی رکھ لیں, سیٹ چینج کر لیں. ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کر رہے ہیں. آپ مائک کو موو کریں پلیز. ہم کر لیں گے, ڈونٹ وری. میرا نام جیا جوہی ہے. عورت مارچ اسلام آباد کا ریاست سے مطالبہ ہے کہ غیر رسمی ملازمت کے شعبے کو باضابطہ بنائیں, جہاں خواتین بڑی تعداد میں کام کر رہی ہیں اور اچھے کام کے معیار, محفوظ اور ہراساں کیے جانے سے پاک کام کے حالات کو یقینی بنایا جائے, اور نہ صرف یقینی بنایا جائے بلکہ اس کے لیے قوانین میں توسیع کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت خواتین کی گھریلو بلا معاوضہ مزدوری کی معاشی شراکت کو تسلیم کرے اور اسے ملک کے مجموعی گھریلو پیداوار GDP میں شامل کرے. ہم ریاست سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ چائلڈ لیبر کے خلاف سخت کارروائی کرے اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائے. عورت مارچ اسلام آباد تمام یومیہ اجرت والے کارکنان, جن میں اساتذہ, نرس, میونسپل ملازمین اور فیکٹری ورکرز شامل ہیں, ان کی کانٹریکٹ کے ذریعے ملازمت کو باقاعدہ بنانے کی درخواست بلکہ مطالبہ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عورت مارچ اسلام آباد فیکٹریوں اور کارپوریشنوں میں طلباء اور مزدوروں کے سرمایہ دارانہ استحصال کا مقابلہ کرنے کے لیے یونین بنانے کا حق دینے کا بھی مطالبہ رکھتی ہے. بہت شکریہ. میرا نام دیتا ہے اور عورت مارچ کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ خواتین, خواجہ سرا, اقلیتوں اور بچوں کو نشانہ بنانے والے سائبر کرائم کے خلاف مؤثر قانون سازی کی جائے اور شکایات کے فوری ازالے کے لیے 24 گھنٹے سہولت فراہم کی جائے. سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز میں پیکا 2016 کا قانون عورتوں کی آواز دبانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور ان کے اوپر ڈیفیمیشن چارجز لگی ہوئی ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پیکا میں ایسی امینڈمنٹ کی جائے جو خواتین اور خواجہ سرا کے لیے مددگار ثابت ہو. جب اسٹارٹ کرنے سے پہلے پورا نام بتاؤ دراز کی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. سامنے نہیں آ سکتے میڈم فریم ایک ہاتھ میں ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کر لیتے ہیں. پیچھے چلے جاؤ. ایکسچینج کر لینا. ایکسچینج چلیے آپ اوکے اوکے. Assalamualaikum. My name is Advocate Rabia Aslan, and I'm going to talk about universal education اور health care تک بہتر رسائی. ٹھیک ہے, تمام خواتین اور معذور افراد, ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور دیہی اور کم آمدنی والے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہماگیر ایجوکیشن اور ہیلتھ کی حکومت کا مطالبہ کرتے ہیں. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح آرٹیکل 25 کو مکمل طور پر لاگو کیا جائے تاکہ ٹرانسجینڈر بچوں سمیت 5 سے 16 سال کی عمر تک تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کی جا سکے. تھینک یو ویری مچ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन की खुद मुख्तारी या ख़वातीन को एम्पावर उस वक्त तक नहीं किया जा सकता कि जब तक वो सियासी तौर पर भी खुद मुख्तार ना हो। तो इस हवाले से ख़वातीन के सियासी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए औरत मार्च का 2025 का मंदरजा झेल मुतालबात है, जिसमें से पहला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2024 में ख़वातीन उम्मीदवारों को आम इंतखाबात के 5% टिकटें अलाट करने पर नाकाम तमाम सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई करें। और हम पार्लियामेंट में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों को बढ़ाकर 33% करने का मुतालबा भी करते हैं, जिन्हें बराह रास्त इंतखाबात के ज़रिए पुर किया जाना चाहिए। नंबर 2 है, हम इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम का मुतालबा करते हैं ताकि सियासी जमातों के लिए ये लाजमी बनाया जाए कि वो अपने फैसला साज इदारों में ख़वातीन को कम से कम 33% नुमाइंदगी दें। इसके अलावा ये है कि जितने भी सियासी कारकुन है ख़वातीन, PTI के और दूसरे तीसरे जितनी जमातों के ख़वातीन एक्टिविस्ट को जो सियासी तौर पर मुतहर्रिक ख़वातीन हैं, उन सब को, उन कैदियों को रिहा किया जाए। इसके अलावा ये है कि जो हमारा मुतालबा है कि रियासत जो है वो 2024 में दर्ज वोटर रजिस्ट्रेशन में 10 मिलियन सिनफी फ़र्क को भी ख़त्म करे। और इसके अलावा ख़वातीन सियासतदानों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और सहाफ़ियों के किरदार खुशी के भी खात्मे का मुतालबा करते हैं। जी शुक्रिया। नाम सब आप लोगों को पता होगा कि जो रिसेंट मूव है 2021 के बाद पाकिस्तान में अफगान महाजरीन की आमद के साथ जो एक केयास डेवलप हुआ है और उसके अराउंड हुकूमत के जितने भी गैर दानिशमंदाना और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ या महाजरीन के हकूक़ के ख़िलाफ़ जितने फैसले किए गए हैं, उस हवाले से भी औरत मार्च के कुछ मुतालबात हैं जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगी। सबसे पहली बात ये कि औरत मार्च इस्लामाबाद हुकूमत की जानिब से अफगान शहरियों की जो ज़बरदस्ती मुल्क बदरी है, उस पॉलिसी की हम शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात मेंशन करना ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाजरीन के हकूक़ के लिए या महाजरीन के हवाले से कोई कानून या कोई पॉलिसी नहीं है। तो अगर इस पॉलिसी की हम मजम्मत भी करते हैं तो देयर इज़ नो पॉलिसी, इट इज़ जस्ट हैपनिंग अराउंड कि हुकूमत नोटिफिकेशंस के ज़रिए महाजरीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है। इस बहरान को औरत मार्च ये समझती है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है और हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर इन मुल्क बदरियों को रोके और इसके बजाय ऐसी पॉलिसियाँ नाफिज करे जो अफगान पनागुज़ीनों के लिए महफूज और कानूनी रस्ते फराहम करे ताकि वो मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सके। इसमें एडिशन सिर्फ ये है कि इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ या चीज़ें होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ और लॉन्ग टर्म एक कानून बनना चाहिए जो जितने भी पनागुज़ीन हैं उनके हकूक़ के हवाले से उस पर काम हो सके। शुक्रिया। नाम बता दो। जी, फातिमा आतिफ। मेरा नाम अबीर और बानो है और हम चाहते हैं कि ब्लास्फेमी लॉज में तरमीम होनी चाहिए। इनको सियासत और पैसों के लिए इनका गलत इस्तेमाल खत्म होना चाहिए। समझ, बर्दाश्त और एक्सेप्टेंस को बढ़ाना चाहिए। स्कूलों में, किताबों में और टीचर्स की ट्रेनिंग में मजहबी डिफरेंसेस, बर्दाश्त और सबको एक्सेप्ट करने की तालीम होनी चाहिए। ख्वाजा लोगों के कत्ल करना बंद होना चाहिए और उनके खिलाफ जो नफरत है उसको भी ख़त्म करना चाहिए। ख्वाजा लोगों की पूरी और बराबर हुकूक मिलने चाहिए। उनको ज़िंदगी का हक, तालीम, नौकरी, इज़्ज़त, ताकि वो पाकिस्तानी समाज में शामिल हों और उसके मुताबिक उनको हिफाजत मिलनी चाहिए। जो लोग माजूर हैं उनकी मदद की जाए। तमाम जगह उनके लिए आसान होनी चाहिए और ऐसे रूल्स होने चाहिए जो उनको आराम से समाज के अंदर शामिल करें और उनको हर जगह बराबर हिस्सा मिलना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुहामा है। हम रियासत से मुतालबा करते हैं कि वो मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, उन्हें बावकार ज़िंदगी के लिए रोज़गार, तालीम और सेहत की देखभाल के मसावी मौक़ा फराहम करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा शफ़ीक है और औरत मार्च इस्लामाबाद बलोच, पश्तून, सिंधी, सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और दीगर सियासी इख्तिलाफ़ात रखने वाली आवाज़ों की जबरी गुमशुदगी और साथ ही साथ मावराए अदालत कत्ल की शदीद मज़म्मत भी करता है और मुतालबा करता है कि इस सिलसिले को फ़ौरी तौर पर रोका जाए। इसके अलावा औरत मार्च इस्लामाबाद ये मुतालबा करता है कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी जो हमारे बलोच अफराद, हमारे बलोच बहन और भाइयों की मावराए अदालत कत्ल का ज़िम्मेदार है, उसको भी गैर मुसल्लह करार दिया जाए। साथ ही साथ हम रियासत से ये मुतालबा भी करते हैं कि जो रियासत की तरफ से मीडिया ब्लैक आउट के ज़रिए बलोच यकजहती कमेटी और साथ ही साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की आवाज़ों को बंद करने की जो कोशिश की जाती है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो और उनको बंद ना किया जाए और साथ ही साथ इन सब सारी कोशिशों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस ज़ैनब है और मैं एक बहुत बेसिक राइट के बारे में बात करने लगी हूँ, मुतालबे के बारे में which state considers a luxury, it's about period poverty। अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुतालबा ये है कि जो बेसिक माहवारी की मसनूआत है उसको वुमेन और ट्रांसजेंडर्स को चाहे वो किसी भी सोशल, जियोग्राफिकल या कास्ट किसी भी कहीं से they're coming from, उनको ये चीज़ this is not a luxury that they should be given that। Second ये है कि इसकी luxury मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसके ऊपर एक big tax लगता है, this is called luxury tax। So we would ask and हमारे मुतालबे में ये कि गवर्नमेंट काइंडली इसको remove करे, it's not a luxury product, it's a basic need of every woman। थर्ड हमारा ये है कि हमारे जो बच्चियाँ हैं उनके निसाब में हर स्कूल में इसको निसाब के अंदर शामिल किया जाए क्योंकि it's important for them to know about their bodies and to make decisions then। Thank you. I'm going to pass this to the next person. मेरा नाम सलाम फारूक है। औरत मार्च इस्लामाबाद मुतालबा करता है कि हुकूमत बढ़ते हुए माहौलियाती बुहरान का संजीदा नोटिस ले और उसके असरात को कम करने और कमज़ोर कम्यूनिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और जामिया पॉलिसी नाफिज़ करे। दूसरा ये कि औरत मार्च इस्लामाबाद हुकूमत की जानिब से ग्रीन पाकिस्तान के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दरिया सिंध पर 6 नई टैंकें तामीर करने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत करता है। हम ऐसे तरक्याती इक़दाम को मुस्तरद करते हैं जो माहौलियाती पायदारी और शहरियों के हकूक़ पर कॉर्पोरेट मुनाफे को तरजीह देती हैं। शुक्रिया। मेरा नाम शासिया खान है और मैं इस वक्त जो मुतालबा आपके तवस्सुत से सबके सामने रख रही हूँ वो पीका के कवानीन की जो हालिया तरमीम है। औरत मार्च इस्लामाबाद कौमी असम्बली की जानिब से पीका कानून में हालिया तरामीम के बाद को मुस्तरद करता है और गैर मशरूत तौर पर इनके खात्मे का मुतालबा करता है। इस कानून के ज़रिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की शिक मौजूद है। हम समझते हैं कि ये कानून आज़ादी इजहार राय के जो बुनियादी हक है हमारा उसको मुतासर करता है। औरत मार्च इस्लामाबाद 29 जनवरी 2025 को नाफिजुल अमल होने वाले पीका एक्ट में तरामीम की मुखालफत करते हुए इस कानून के तहत जो गलत मालूमात की अशात को जुर्म करार दिया जा रहा है, लेकिन उसकी जो तारीफ की जा रही है वो बहुत मुबहम और मौजूदी है और हम समझते हैं कि उसको अपने मकासद के लिए और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ख़वातीन और दीगर पिछड़े हुए तबकात के
के लिए इसलिए मुश्किलात का बायस बन गया। मुझे इसके बाद एक और मुतालबा रखना है, अगर आप जी जी इसके बाद दूसरा जो बहुत अहम मुतालबा है और जो ख़ास तौर पे हमारे औरत मार्च और ख़वातीन के हुकूक पर बराह रास्त असर अंदाज भी हो रहा है, वो पुरअमन इज्तिमा और अवामी नज़्म ज़ब्त का कानून है, जिसे पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024 है। क्योंकि हम इसकी मुखालफत करते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये हमारे या किसी भी शहरी के जो बुनियादी इज्तिमा की आज़ादी और तंजीम साजी और अंजुमन साजी का हक है, उस पर हम इसे एक डाका तस्वर करते हैं और एक राह रास्त रियासत की जानिब से हमला तस्वर करते हैं। और ये कानून गैर ज़रूरी पाबंदियाँ आयद करके शहरियों को पुरअमन एहतजाज और ख्यालात के इजहार के हक को महदूद करता है, जो हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। इसी से रिलेटेड आज जैसा कि आप सबके इल्म में है और इससे पहले हुदा ने तफसीलन बताया भी कि 2020 से जिस किस्म के मसाइल औरत मार्च का सामना है, उसमें सबसे बड़ा एक मसला ये है कि इसी तरह के कवानीन और को बुनियाद बना के हमें एनओसी औरत मार्च के लिए नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है कि ख़वातीन के उस बुनियादी हक को, जो पुरअमन असेंबली का हक जो आइन हमें देता है, उसको न सिर्फ ये कि पीछे रखा जा रहा है, बल्कि दूसरा ये है कि दूसरी सूरत इसकी ये है कि ख़वातीन को मौलवियों के सामने, रियासत के गुंडों के सामने, पुलिस के सामने बिल्कुल नहते ख़वातीन को उनके सामने डाल दिया जाता है कि चाहे इन पे ईंटें बरसाई जाएं, चाहे लाठियां बरसाई जाएं। तो ये जो जद्दोजहद है हमारी, वो इन दोनों पीका और ये जो पीसफुल असेंबली का जो एक्ट है, इसके खिलाफ है। और हमारा मुतालबा है कि इसमें की जाने वाली हालिया तरामीम को फिल फौर ख़त्म किया जाए। और इसके साथ हम मुतालबा करते हैं कि 8 तारीख को जो हमारा औरत मार्च है, उसके लिए फिल फौर एनओसी मुहैया किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरजाना बारी है और आपने सब औरत मार्च इस्लामाबाद के मुतालबात जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड है इस साल का, वो के लिए वो डिमांड्स हैं जो हम हर साल करते हैं, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त नहीं होती है, लिहाजा हम बार बार अपनी जो डिमांड्स हैं उनको दोहराते हैं। तो ये आपके सामने सबने पेश की। इस्लामाबाद औरत मार्च इस्लामाबाद की तरफ से हम ये एक मुतालबा रख रहे हैं कि 8 मार्च जो औरतों का आलमी दिन है, उससे पाकिस्तान में उस दिन जो है वो कौमी सतह के ऊपर छुट्टी डिक्लेयर की जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो बहुत सारी ख़वातीन है, क्योंकि जो घरेलू मैशत है उसका सारा बोझ हमारी औरतों ने उठाया होता है और उसकी वजह से वो नहीं निकल पाती हैं कि इस दिन वो अपनी बाकी बहनों के साथ मिलके जो है वो अपना दिन जो है उसको कमेमोरेट कर सकें, उसको बना सकें, आपस में मिल बैठ सकें। इस साल क्योंकि ये रमज़ान में आ रहा है, तो इस वजह से बहुत सारी हमारी औरत मार्च के दूसरे चैप्टर्स में ये एक ख़ास तौर पे सोच रही है। और क्योंकि वो समझती हैं कि औरतों के ऊपर रमज़ान में काफ़ी बोझ होता है कि उन्होंने इफ्तारी तैयार करनी है, क्योंकि घर के दूसरे अफराद उनका उसमें साथ नहीं दे रहे होते, तो उसकी वजह से भी ये फैसला किया गया कि मे बी हमें रमज़ान में डेट्स तब्दील की या टाइम उनको तब्दील करना पड़ा। और ये भी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह कि हमने यहाँ पे मुतालबा रखा है कि औरतों की जो घरेलू मैशत में जो उनका किरदार है, खास तौर पर घर का काम काज, जिसकी एक माशी हैसियत है, क्योंकि जो औरत घर में खाना बनाती है, अगर वो होटल में बनाएगी उसको उसका पैसा मिलेगा, अगर वो घर का में सफाई करती है, जब वो बाहर जाके सफाई करती है उसको उसका पैसा मिलता है। तो जो घरेलू मैशत है उसकी जो उसके अंदर उसका जो माशी जो है कदर है, उसको एक्सेप्ट करना
اور اس کو GDP میں جہاں مطالبہ کیا گیا ریفلیکٹ کرنا، اور اسی کانٹیکس میں سمجھتے ہیں کہ 8 مارچ کا دن جو ہے وہ عورتوں کا دن ہے اور اس دن پاکستان میں چھٹی ڈکلیئر ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ہم فلور اوپن کرتے ہیں. آپ ساتھیوں کے جو بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ پلیز فیل فری ٹو. اتنے سالوں سے عورت مارچ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہے، اور آج آپ نے پوری ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جس میں یہ سامنے نظر آتا ہے کہ عورتوں کو اب بھی پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں حقوق کے حساب سے بارے سے جو ہے مسائل درپیش ہے. تو اس میں آپ کی جو جدوجہد ہے آپ اس کو بھی کہیں فیلئر یا ناکامی یا کہیں اس میں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سارے کا سارا جو ہے وہ سوسائٹی یا ذمہ دار ہیں عورتوں کا حقوق کا. دیکھیں پاکستان میں عورتوں کی تحریک جو ہے وہ عورتوں کی مسائل کو اجاگر کر سکتی ہے، اس کے اراؤنڈ عورتوں کو موبلائز کر سکتی ہے، جو کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ینگ فیمنسٹ ہیں جو پاکستان کی پڑھی لکھی ہے، جو آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے جو عورت مارچ اسلام آباد کی آرگنائزر ہیں، یہ سب پڑھی لکھی باشعور خواتین ہیں. یہ ان مسائل کی نشاندہی کر رہی ہیں، اس کو اٹھا رہی ہیں، اس کے اوپر مزاحمتی تحریک کر رہی ہیں. لیکن یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ کوئی ان کو آپ نے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں نہیں پہنچایا ہے. ان مسائل کا جو حل کرنا ہے وہ آپ کا جو آپ کی الیکٹڈ باڈیز ہیں جن کو آپ اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، جو آپ کی حکومت ہے، ان کا کام ہے، جن کے پاس ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، جنہوں نے وہ پیسہ لگا کے عورتوں کے لیے تعلیم کے مواقع مہیا کرنے ہیں، ان کی صحت کے مواقع مہیا کرنے ہیں، ان کو جو تشدد سے جو وکٹم ہے ان کو سپورٹ سروسز دینی ہے. تو یہ کام جو ہے یہ تو ریاست کا کام ہے. تو ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری ریاست ہمیں فیل کر رہی ہے. ہم فیل نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت ہر طرح کی مزاحمتی طریقے جو ہے وہ پورے زور و شور سے چل رہی ہیں، یہاں تک کہ ان مزاحمتی طریقوں کے ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، گولی بند لاشیں مل رہی ہیں، اجتماعی لاشیں مل رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے باشعور عوام جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ ان کی باشعور جو عوام کی آواز دبانے میں ہماری ریاست کامیاب نہیں ہے، بلکہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ایک خوف میں مبتلا ہے کہ پیکا جیسے قوانین لا دیں کہ ہم بات کریں گے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ اس قانون میں جب ہم کل پرسوں ہفتے والے دن آپ کی پریس کلب کے سامنے اپنا دن منائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ قوانین کس طرح یہ اس کو ویپنائز کریں گے ہمارے خلاف، اور ہم اپنا دن بنا رہے ہوں گے لیکن یہ کس طرح ہمیں اس کو استعمال کر کے ہمیں روکیں گے. تو آپ کی بات بالکل میں یہی کہوں گی کہ ریاست جو ہے وہ اس نے پاکستان کے عوام کو بے حد مایوس کیا، اور خاص طور پہ عورتوں کو. میڈم پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو NOC کے حوالے سے مشکلات پیش آ رہے ہیں اور آپ کو پریڈ گراؤنڈ میں اجازت دی گئی ہے. انہیں اجازت نہیں دی گئی ہے. خدا آپ بات کریں کہ پرائم منسٹر کو خط لکھا وہ تفصیلات ہم نے تقریباً آج سے کوئی 3-4 ہفتے پہلے ہم نے NOC کی جو اپلیکیشن ہے ہم نے وہ سبمٹ کی. ہم ہر سال NOC کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم سبمٹ کر دیتے ہیں. ہمیں ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی کبھی کہتے ہیں کہ آپ F9 پارک چلے جائیں. ابھی انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پریڈ گراؤنڈ سجیسٹ کیا. انہوں نے کہا NOC آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ نے اپنا جلسہ کرنا ہے تو آپ پریڈ گراؤنڈ میں کریں. ٹھیک ہے. تو ہمیں ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، جس کے بعد ہم نے یہ سوچا اب دیکھیں ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، ہم اس میں آرگنائزنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے اندر لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، موبلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ ہم عورتوں کے کیا حقوق ہیں بحیثیت پاکستانی عورت کے، میرے کیا حقوق ہیں. میں ٹیکس پیئر، ہم جتنی خواتین ہیں ہم ٹیکس پیئرز ہیں، ہم وہ تمام خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں، ہم نے مردوں کے جتنے بھی ٹیکسز ہم بھی بھرتے ہیں. تو کیا ہمیں کیوں جو ریاست ہے وہ ہمیں تحفظ کیوں نہیں فراہم کرتی، ہمیں کیوں نہیں پروٹیکشن دیتی، ہمیں کیوں نہیں NOC ملتا. اور ہم نے پھر کیا کیا کہ ہم نے سوچا کہ کیا ہم دوبارہ جائیں، جو ہم بار بار جاتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کو کل بتائیں گے، پرسوں بتائیں گے. ٹھیک ہے، 2 دنوں میں ہمارا مارچ ہونے والا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے پاس اس دفعہ نہیں جائیں گے، اور ہم نے اپنا کام کیا. ہم نے ایک اپلیکیشن دی، ہم نے یہ طے کیا کہ ہم پرائم منسٹر شہباز شریف کو ڈائریکٹ خط لکھیں گے. ہم نے وہ خط لکھا ہے، وہ خط ہمارے سوشل میڈیا پہ ہم نے اسے پبلک کیا، ہم نے وہ خط ان کو ای میل کیا، اور ہم نے شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر صرف اور صرف اپنی پارٹی کے یا مردوں کے نہیں ہیں، وہ عورتوں کے بھی پرائم منسٹر ہیں. ہم بھی ان کی ریاست کے ہی رہنے والے ہیں، اور ہمارے جو حقوق ہیں وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں. اور اسپیشلی ہمارے
सियासी हुकूक उतने ही अहम है जितने बाकियों के सियासी हुकूक अहम है। तो हमें जो है फौरी तौर पे उनको नोटिस लेना चाहिए और हमने ये लेटर उनको लिखा है। हमें ये लेटर लिखने के बावजूद, एक डायरेक्ट पब्लिक अपील करने के बावजूद, शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमें अभी तक किसी किस्म की कोई जो है वो उम्मीद नहीं है कि हमें ये एनओसी दिया जाएगा। और जब हम यहाँ पे 2 दिनों के बाद यहाँ पे जमा होंगे, हमें ये लगता है, हमें ये खतरा लाहक है कि हमें फिर से रियासती जबर का सामना करना पड़ेगा, जो हमने पिछले साल किया और उससे पिछले साल भी किया। मैडम, आपको एनओसी क्यों नहीं मिल रही? क्या वजह कोई नहीं बताई? वजह भी नहीं बताई। रमजान की वजह से नहीं दे रहे? हमें हर साल नहीं मिला सर, रमजान तो इस दफा आया है। नहीं, रमजान में आप ये प्रोग्राम मुलतवी नहीं कर सकते। जी 1 मिनट, उनको भी टैग किया सर, उनको भी टैग किया था। जी आपने क्या कहा कि रमजान की वजह से, रमजान के महीने की वजह से ये आप प्रोग्राम मुलतवी करके ईद के बाद नहीं ले जा सकते? ठीक है, मैं इसको सर एक जवाब आपको दूंगी। 8 तारीख जो है 8 मार्च की, जैसे मजदूरों का दिन होता है ना 1 मई, ठीक है, आप 1 मई को इसलिए नहीं तब्दील करेंगे अपना जलसा और अपनी मज़ामत अगर उस दिन पे कोई रमजान की कोई डेट आ जाती है। आप अपनी तहरीक चलाते हैं, हमने तो इसको अपॉर्चुनिटी जाना है। रमजान में औरत मार्च के आने का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि हम अपना जो पॉलिटिकल मैसेज देंगे उसमें म्यूजिक नहीं होगा, उसमें गाना नहीं होगा, हम अपना मैसेज भरपूर तरीके से देंगे जिसमें सिर्फ सियासत की बात होगी। हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी जाना है, क्योंकि इससे पहले ये हुआ है कि जब भी हम औरत मार्च करते थे तो जाहिर सी बात है ये हमारा दिन है, हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, हम अपना रक्स करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन इस साल क्योंकि ये रमजान में आ रहा है तो हमने रमजान के एहतराम को बरकरार रखने के लिए अपना प्रोग्राम इस तरह से तश्कील दिया है कि जिसमें सियासी मैसेज भी दिया जाएगा और रमजान का एहतराम जो है वो भी यकीनी बनाया जाएगा। सारी चीजें आपने अपनी एनओसी के लिए सारी चीजें आपने हुकूमत को लिख के पेश की है कि हम ये प्रोग्राम नहीं कर रहे? देखें, ये उनका वो नहीं है कि वो हम बताएं कि हम कैसे अपना, उनका काम ये है कि वो हमें एनओसी दें। दूसरी बात ये कि देखें, जिन मजालिम की हम बात कर रहे हैं, कोई रमज़ान में वो मजालिम औरतों पे या बच्चों पे बंद नहीं हो जाते। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले साल रमज़ान में जितने केसेस रिपोर्ट हुए, इत्तकाफ तक के आप मीडिया के लोग हैं और आप लोगों ने वो केसेस रिपोर्ट भी की। मैं किश्वर नहीद साहबा को बहुत वेलकम करती हूँ, बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए। ज़ाहिर हमारी जी एक सवाल का जवाब देते हैं। हर साल देखते हैं कि आपकी जानिब से मुतालबात सामने आते हैं, लेकिन ये हमें बताएं कि आपकी तंजीम की जानिब से क्या कभी मजम्मत भी की गई है? जब एक जज की, मैं बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जब एक जज की अहलिया सोमिया एक बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद करती है, क्या उसकी मजम्मत की या कभी आपने उसकी मजम्मत की? कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जब तब्दील होती है तो अपोजिशन की खवातीन के साथ जो कुछ किया जाता है उनकी मजम्मत देखिए, ऑन रिकॉर्ड आपको बता दें कि हमने ये जो अभी क्या नाम है, बुशरा बीबी का जो इद्दत का केस था, वहाँ पे यहाँ पे जो बाहर उस इद्दत के उस पे जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो औरत मार्च इस्लामाबाद ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट के अंदर पीटीआई की औरतें जो थी, जिन्होंने हमें बहुत कहा कि हम भी आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया, लेकिन औरत मार्च की औरतें खड़ी थी। जहाँ भी कहीं जुल्म होता है, और जो आप बात करें कि यहाँ पे हर वक्त जब भी कोई इंसानी हकूक की जहाँ पे जो है वो वायलेशन होती है, तो बाहर जो खड़ा होता है, चाहे वो हिंदू लड़कियों की फोर्स कन्वर्शन का इशू हो, चाहे वो बलोच औरतों के ऊपर जुल्म हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर का जो है उनको मर्डर किया जा रहा हो या उनके साथ जुल्म हो रहा हो, तो यहाँ पे जो खड़ी जो आवाज़ें होती हैं, और फिर आप लोग भी कहते हो कि आवाज़ें क्यों कम है, लेकिन औरतें आज पाकिस्तान में इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का वैनगार्ड बन चुकी हैं। हम औरत मार्च की औरतें, खास तौर पे मैं कहूँगी औरत मार्च इस्लामाबाद, हर उस वायलेशन के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में होता है, हम प्रोटेस्ट में सबसे आगे जो है इस्लामाबाद में, उसके ऊपर जो है हम अपनी वो प्रेस रिलीजेस निकालते हैं, अपनी पोजीशंस देते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए कि औरतों के वाले में 2024 में सबसे बड़ा कौन सा वाक़या ऐसा हुआ जिसको आप समझते कि अभी तक हल नहीं हो सका? एक जो अच्छा मैडम, मेरा सवाल है आपसे जी कि माजी में मुझे याद है 10 साल 15 साल 20 साल पीछे चले गए, बड़ा पुरअमन ये आपका एहतजाज होता था,
ये चाइना चौक से लेके और जी पार्लियामेंट करते तक थे, जाता था, बिल्कुल वहाँ जी। आपकी स्पीच होती थी और वो बिल्कुल सही। प्ले होता था एक। जी जी। अब क्या वजह है इसमें, क्या है कि क्यों इंतशार का शिकार हो गया, इसमें जिम्मेदार किसको समझती हैं आप? देखिए इसमें दो 2-3 साल से अब इंतशार का शरत शिकार सही, चल रहा जी है, जी कॉर्डन बिल्कुल ऑफ कर दिया जाता है पूरे इलाके बिल्कुल को, सही। इसमें कसूरवार कौन है? देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि आप जिस तरह आपने बिल्कुल राइटली कहा कि औरतों का दिन, पाकिस्तान की औरतें जब से पाकिस्तान बना है वो हर दिन मनाती हैं, ठीक है। आपने जिस तरह निशानदी की वेब के अंडर हम मनाते थे और मशल बरदार जुलूस निकलते थे, कभी कोई सेमिनार्स होते थे, सब कुछ होता था, कोई इस तरह का बैकलैश नहीं आता था। पहला बैकलैश आया है 2018 में, जब पाकिस्तान की नौजवान फेमिनिस्ट औरतों ने एक कॉल दी, ठीक है, अंडर औरत मार्च के बैनर के नीचे, और पाकिस्तान की जितनी भी औरतों की तहरीक थी उसमें जो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे इंक्लूडिंग एनजीओ, सब ने फैसला किया कि हम अलग-अलग अपना दिन नहीं मनाएंगे, हम इस औरत मार्च के बैनर के नीचे ही 8 मार्च मनाएंगे। उसका क्या हुआ कि जब हजारों की तादाद में 2018 में औरतें निकली, और अब हर साल औरतें औरत मार्च के बैनर के नीचे, जब हर तबके की औरत निकलती है, मेहनत कश तबके की भी औरत होती है, ये पढ़ी लिखी लड़कियां भी हैं, अपर क्लास की भी होती हैं, देही इलाकों की भी औरतें होती हैं, तो उससे एक जो एंजाइटी पैदा हुई है, जो एक कंजर्वेटिव माइंड सेट है पाकिस्तान में, जो औरत को इंसान होने का दर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं है, उनको ये फिर तकलीफ हुई कि ये औरतें जो हैं, ये एक तो ये कि उनकी तादाद और उनका इकट्ठा होना, और दूसरा कि इन नौजवान बच्चियों ने सिर्फ रियासत और एक जो समाज के अंदर पैट्रियार्की है, जैसे हम हमारे जमाने में हम ज्यादा लीगल राइट्स की बात करते थे, इन औरतों ने ये भी कहा कि जो घरों में हमारे साथ होता है, जो घरों में हम काम करके आती हैं तो खाना हमें ही गर्म करना पड़ता है, आदमी गर्म कर ले तो कोई हरज नहीं है, हमें एक ऐसे पार्ट, उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा जिस्म है तो उस पे मेरा इख्तियार होना चाहिए, मेरी मर्जी होनी चाहिए, मेरी छोटी उम्र में मुझ पे शादी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, मुझसे 12 बच्चे इसलिए ना जन्माए जाएं कि मैं लड़का पैदा नहीं कर रही हूँ, मुझे छोटी उम्र में मेरी शादी ना कर दी जाए, मुझे हर तरह की जबरदस्त मैरिटल मेरे रेप ना हो, मेरा तहफ्फुज़ हो। तो ये जो मामलात थे, इसमें भी बहुत ज्यादा जो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट है, जो ये कहता है कि औरत, आज भी कहते हैं कि औरत मर्द की मिल्कियत है, जाती मिल्कियत का तस्वुर जो है, जो आज भी हमारे समाज में बहुत ज्यादा अपनी जगह पे मौजूद है कि औरत मर्द की मिल्कियत। जब औरत ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उनको ये फिक्र हुई कि ये जिस्म तो मेरा था। मर्दों की तरफ से जो रिएक्शन आया है उस नारे की तरफ कि मेरा जिस्म मर्जी, उन्होंने कहा ये औरत का जिस्म तो मेरी मिल्कियत है। ये नारा कैसे लगा रही है कि मेरा जिस्म मेरा ख्याल, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और उसके अंदर एक एंजाइटी हुई, और हम उस नारे को हमने जगह जगह जाके, हम यूनिवर्सिटियों में गए हैं, कॉलेजेस में गए हैं, बल्कि हम जो कई दफा ये जो शाम में मार्केट्स में जाते हैं और हम इस नारे को एक्सप्लेन करते हैं, और उसकी वजह से हम ये समझते हैं अब इस नारे के हवाले से बहुत ज्यादा जो है अवेयरनेस आ चुकी है, और अब हमें ज्यादा लोग ये नहीं, पहले 1-2 सालों में लोग बहुत करते थे ये नारा, आप प्लीज मत ये लगाएं। नारा जो है इंतशार का शिकार नहीं, ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। कामयाबी की तरफ हम ये समझते हैं कि हमने उस प्रेशर की वजह से, देखें इस औरत मार्च की जो रेजिस्टेंस है, जो मज़ामत है, वो ये है कि हम खौफ की वजह से जो है अपना ना तो अपनी जगह छोड़ेंगे, ना अपने नारे छोड़ेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर वो नारा दुरुस्त है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म कर लो, तो ऐसे नारों के साथ हम खड़े हैं, और उसके बारे में फिर हमने कोशिश की है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, और अब जो हमें रेजिस्टेंस उस वक्त मीडिया की तरफ से भी आई थी 2018-2019 में, अब नहीं आती है, तो उसके लिए भी हम मशहूर हैं। जी, ख़वातीन के जो आज़ादी की बात आप कर रही हैं, औरत के मार्च की बात कर रही हैं, आप उनके हुकूक की भी बात कर रही हैं, आपके मुतालबात सारे जायज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पे औरत की तरफ से मर्दों पे जो मेंटली टॉर्चर कर रही होती है उन्हें, वो बेचारे भी वो तो दफ्तर से घर ही नहीं जाना चाहते हैं, तो उस पर भी आप बात करेंगे। वो वहाँ पे ख़वातीन तो ऊपर है, वो मर्द से तो आई नहीं। हम फितरशाही के खिलाफ मार्च करते हैं, और अगर किसी मर्द के ऊपर भी कोई भी जिन्स का इंसान अगर उस पर तशद्दुद करता है तो उसे औरत मार्च में आने की और हमारे साथ मार्च करने की दावत है। तो सर मैं आपको कहूँगी आप मर्द मार्च रखें, हम उसमें शिरकत करें।
बहुत जल्द जो है ना जिसमें औरत फाउंडेशन है ना बहुत जल्द जो है ना मर्द फाउंडेशन भी तुम्हारे देखिए एक पहले तो इस बात को समझ लें कि जब औरत अपने हुकूक की बात करती है तो वो मर्दों की कोई मुखालफत या मर्दों के खिलाफ बात नहीं करती है, क्योंकि हम समाज के अंदर देखें और ना औरतें मर्दों के बगैर जिंदा रह सकती हैं ना मर्द औरतों के बगैर रह सकते हैं, ठीक है। हमारा एक इंटरडिपेंडेंसी का रिलेशनशिप है। तो ये जो आपने बात की है ना कि बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि ये औरत और मर्द की कोई जिस्म की बात नहीं है। पिदरशाही इज नॉट अबाउट आवर बॉडीज, इट्स अबाउट आवर माइंडसेट। अगर एक औरत जो है वो एक पिदरशाहाना पिदरशाहाना माइंडसेट रख सकती है, और एक मर्द जो है, बहुत सारे मर्द हैं जो मैं समझती हूँ कि I'm sure जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, हम सब के पास वो स्टोरीज है जिसमें हमारी जिंदगी में कुछ मर्दों ने हमें फैसिलिटेट भी किया है, हमारे साथ भी दिए हैं। आप में से मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सिनफी हसासियत रखते हैं, वो हमारे एलाइज हैं। और वो औरतें जो चाहे मीडिया में बैठी हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में बैठी हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्स में बैठी हैं, अगर वो एक पेट्रियार्कल थिंकिंग रखती हैं तो वो हमारी एलाइज नहीं है। इसलिए नहीं कि क्योंकि वो औरतें हैं, अगर उन औरतों ने एक पिदरशाहाना सोच रखी है तो हमारा उनके साथ कुछ नहीं बनता। जी आप बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है, एक दिन है आप लोग मनाते हैं, चलो कुछ खवातीन। मेरा सवाल आपके औरत मार्च इंतजामिया से ये है कि हम काफी अरसे से ये मार्च में आपका कवर कर रहे हैं, जी जी, लेकिन उसमें वही 200-300-400 खवातीन जो जाने पहचाने चेहरे हैं सिर्फ वही आते हैं। ऐसी क्या आप में इस चीज में कमी है, आपके मंशूर में, या ऐसी क्या चीज है कि एक आम औरत, एक आम लड़की, एक कॉलेज की, एक यूनिवर्सिटी की लड़की, वो आपके मार्च में ना शामिल हुई है, ना उनकी तादाद बढ़ी है, वही जो बेशक 2-4 जैसे गरम साहब आती है, कुछ वकील वकला आती हैं, वो होती हैं, तो ऐसी क्या चीज, कमी क्या है कि वो लोग आप में शामिल नहीं हो रही, या फिर इस बात में कितनी सदाकत है कि इनमें से वही औरतें होती हैं जो एनजीओ वगैरह चला रही हैं प्रोसेस? नहीं, मैं आपको एक तो ये बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में जो औरत मार्च के चैप्टर्स हैं, सिर्फ इस्लामाबाद औरत मार्च नहीं, कोई भी डोनर फंडिंग किसी की नहीं है, सब हम अपनी जेबों से कंट्रीब्यूट करते हैं, ओपन कॉल देते हैं, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं अपने इंडिविजुअली अपनी जेबों से। फिर हम बहुत सारे इस तरह के वो करते हैं फंड रेजिंग, जैसे अभी इस औरत मार्च इस्लामाबाद ने 2 फंड रेजर्स किए, उसमें हमने पैसे जो इकट्ठे किए। एक बात ये ठीक है, तो हमारा कोई एनजीओ के लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो उनकी फंडिंग हमारे औरत मार्च के उसमें नहीं आती है। दूसरी बात जो आपने की ना कि ये और लोग क्यों नहीं आते, इसकी 2 वजूहात है। 2018 में देखा ना आपने, 19 में हजारों की तादाद में लोग आए, फिर क्या हुआ, डंडे पड़े, ब्लास्फेमी के चार्जेस लगे। तो हर वक्त लोगों को, अब हमने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में हम गए थे, उनसे बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स ने कहा मैडम हम आना चाहते हैं लेकिन हमें डंडे तो नहीं पड़ेंगे। तो मैंने कहा बच्चे मैं तो आपको गारंटी नहीं कर सकती, मज़ाक़ती तहरीकों में रिस्क लेना पड़ता है। उसका नतीजा ये होता है कि जो जिन मेहनतकश तबकों की औरतों के साथ हमारे रवाबत हैं, ठीक है, वो गरीब तबके की औरत खुद पिंडी से या इस्लामाबाद से अपना खर्चा करके यहाँ नहीं आ सकती, ठीक है। हमारे पास फंड भी होते हैं, हम उनको ट्रांसफर भी दे सकते हैं, लेकिन हम ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि अगर यहाँ पे आके उनको डंडे पड़े तो हम उनको एक्सपोज नहीं कर सकते। हम रियासत के जबर के सामने अपनी मेहनत गश गरीब औरत को नहीं डाल सकते। उसका नतीजा क्या है कि हमारे ही इस शहर से औरतें जो है वो पार्कों में चली गई हैं, इसी शहर की एक्टिविस्ट भी पार्कों में चली गई हैं डर और खौफ की बुनियाद वजह से। लेकिन फिर ये वाली जो एक तरह से दिलेर, बहादुर, जुर्रत वाली और ये औरतें जो आपके सामने बैठी, उन्होंने कहा कि हमारा ये दिन है, हम फैसला करेंगे, कोई हमें नहीं बताएगा कि हमें कहाँ जाना है, क्या नारा लगाना है, कैसे अपना दिन बनाना है, हम खुद अपना फैसला करेंगे। इसीलिए आप ये देखें कि मुसलसल औरत मार्च हर वक्त इस्लामाबाद जो है यहीं से शुरू करता है, आपके प्रेस क्लब के सामने से और डी चौक तक हमारा मौका दीजिए अभी इस सवाल का जवाब। देखिए हर वक्त सड़कों पे पूरी आबादी नहीं आ जाती होती, हमेशा नुमाइंदा खवातीन, कोई स्टूडेंट्स हैं इनमें, कोई मेहनत कश तबके से हैं, कोई सियासी पार्टी से हैं, कोई इंसानी हकूक़ की चैंपियन हैं, इन खवातीन में जो यहाँ पे मौजूद हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को लीड करती हैं। हमारे पास
दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं वो भी हैं। हमारे पास जो दूसरे फ़िरक़ों में मज़हब के अंदर जो फ़िरक़े मौजूद हैं उनसे भी लोग हैं, माइनॉरिटीज़ से लोग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब की यहाँ पे नुमाइंदगी नहीं है, इन सब की नुमाइंदगी मौजूद है, लेकिन इस नुमाइंदगी पर रियासत को आंखें खोलनी चाहिए और हुक्मरान जमातों को आंखें खोलनी चाहिए कि ये जो मुतालबात हम रख रहे हैं इसमें बताए कौन सा ऐसा मुतालबा है जो कि इंसानी या आईनी या हम आइन से बाला कर जाके कोई चीज मांग रहे हैं, तो उनको इसको सुनना चाहिए और इस पे अमल दरामद करना चाहिए। ख़वातीन के खिलाफ जो साइबर क्राइम है आपने उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत से मुतालबा किया है, दूसरी तरफ आपने साइबर क्राइम का जो कानून है उस पर भी आप तनकीद कर रहे हैं, जब कानून पे भी आप आज़ादी इज़हार के खिलाफ करार दे रहे हैं और कार्रवाई का मुतालबा भी आप कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? मैं सिर्फ उनको ये जवाब देना चाहती कि आप कहते हैं कि आम ख़वातीन, तो हम सब बहुत आम लोग हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, 9 से 5 नौकरी करने वाले। मैं से कवर कर रहा हूं क्योंकि आप सब कुछ जानते हो, इसलिए मैंने कहा कि नया चेहरा नहीं है। हम में से कोई भी DHA में नहीं रहता, ठीक है? हम में से कोई भी DHA में नहीं रहता, ठीक है? अब ये चला मत दीजिएगा, सही है? अच्छा जी, यहाँ एक सवाल है, जी सवाल लेकर आता मैं उनका जवाब आप ले ले, उसके साथ ऐड कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए फरदाना वारी साहिबा जी, दूसरा पीपल्स पार्टी का जब दौर था, उनकी हुकूमत थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, यहाँ पर शक्करपड़ियों में औरत मेले का इनेकाद किया गया था, ठीक है? वो माहौल दोबारा आप क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं? आप क्यों बाज़ेद हैं? एक तरफ आप आर्मी को जो है टारगेट करते हैं कि हम वहाँ इसलिए नहीं ग्राउंड में करेंगे कि वो जनाब आर्मी की सरगर्मियों में के लिए नाम से जो है ना मंसूब है या वहाँ पर वो पहचाना जाता है, तो आप वो माहौल क्यों नहीं लेकर के आते हैं कि पुरअमन तरीके से उस वक्त मार्च नहीं था, लफ्ज़ मार्च नहीं था, ये आप इस सवाल करना चाहते हैं? सब है कि पिछले कोई 6-7 साल पहले या उसके बाद या इमरान खान का जब ये जो पैरेलल आपके पैरेलल एक जुलूस रियासत की कुछ तलाई में इधर निकाला जाता है जी, बुर्का पहन के जो ख़वातीन आती है जी, उसके मतलब का वो भी तो औरत करती है ना, उसके वो जरा अच्छा जी मैं जी प्लीज मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखें जी, हम तो ये चाहते थे कि ख़वातीन जो हैं वो सड़कों पे आएं, तो जिन आपने हमसे पूछा कि क्या औरत मार्च फेल हुआ है, मुझे लगता है कि वो जो बुर्का पहन के ख़वातीन निकलती हैं ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, ठीक है? ये वो ख़वातीन जो कि अपने घरों में थी, अब वो भी सियासी मंजरनामे पे आ रही है, बेशक हमारे खिलाफ आ रही हो, लेकिन हम उनकी राय का जो है एहतराम करते हैं और हमें लगता है कि औरत मार्च की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उसने बुर्का पहनने वाली जो ख़वातीन है, एक स्पेसिफिक माइंडसेट से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन है, उनको भी मजबूर कर दिया कि वो भी सड़कों पे 8 मार्च को निकलें। तो प्लीज हम इस पे बहुत फख्र महसूस करते हैं। पहला सवाल उधर से भाई से लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में या कुछ सालों में आप उनसे हाथ भी मिला लेंगे। हम मिला लेंगे जी, देखें बात सुने वो ख़वातीन है, ठीक है, हम उनका एहतराम करते हैं। नजरियाती तौर पे हमारा उनके साथ इख्तलाफ है, हम नजरियाती बेसिस पे कभी भी उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन वो भी हमारी बहनें हैं, ठीक है? हमारे दिल में उनके लिए किसी किस्म की कोई रंजिश नहीं है, कोई गम नहीं है, ठीक है? वो जो करती है वो उनका अपना जो है वो बिलीफ सिस्टम है, वो उस पे रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। हम अमन का पैगाम उनको भी देना चाहेंगे। आपके सवाल का जवाब ये हुआ। आपका सवाल सर क्या था? मेरा सवाल ये था कि जो बेनज़ीर का दूसरा दौर जी बिल्कुल, वो माहौल दोबारा क्यों नहीं आ रहा? मेरे बिल्कुल कसूरवार बिल्कुल आप हैं, गवर्नमेंट जी, गवर्नमेंट कोई एक नहीं है, तमाम सियासी जमातों की आई है जी, ठीक है, उसमें कौन है, वो माहौल क्यों नहीं आ रहा? जी देखिए जी, हमारा ये मानना है, औरत मार्च इस्लामाबाद का ये मानना है कि ये जो मेला है औरतों का लगाना, ठीक है, या इस तरह की जो भी सरगर्मियां हैं वो तो NGOs भी करती हैं, रियासत भी करती आई है, लेकिन क्या वो सरगर्मियां सियासी सवालात को इतने धड़ल्ले से और इतने आज़ादाना तरीके से डिस्कस कर सकती है जिस तरह से ये तमाम जो टॉपिक्स हैं वो औरत मार्च में डिस्कस हुए हैं? फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की पुष्पनाही में अगर एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो आप क्या उसी ही इवेंट में बैठ के उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर वो कुछ गलत काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए औरत मार्च
मार्च इस्लामाबाद ने खुद को पहले दिन से गैर जानिबदार रखा है। हमारी मेंबरशिप जो है उसमें वॉलंटियर कोई भी बन सकता है, लेकिन जो हमारी कोर तंजीम है उस तंजीम के अंदर कोई भी औरत जिसकी किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी और स्पेसिफिकली वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके मंशूर में फेमिनिज्म नहीं है, हम उसको मेंबर तक नहीं बनाने देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी सियासत है वो जो सियासी पार्टियां हैं उनकी पॉलिटिक्स से बालातर हो। हमारा काम है, और जो अभी आपने सवाल पूछा कि हमारा रोल क्या है, सर हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे हैं। हमारे पास जितनी रिसोर्सेस हैं, जितनी हमारे पास ताकत है, हम सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का उन टॉपिक्स पे, उन इश्यूज पे जो है उनकी तवज्जो मरकूज कर सकते हैं जिनका हम औरतों को और औरतों के साथ साथ जो दीगर जिनसी जो अक़लियतें हैं और जो मजहबी अक़लियतें हैं और जितनी भी अक़लियतें पाकिस्तान में रहती हैं, जब उनको खतरात लाहक होते हैं, तो हमारा ये काम है कि हम उस गवर्नमेंट को जो है वो हम मौरूद इल्जाम ठहराएं कि अगर उसने हमारे हक तलफी की है। इसीलिए आपने औरत मार्च को जब हम इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, तब जब औरत मार्च इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज औरत दुश्मन पॉलिसीज होती थी, औरत दुश्मन नैरेटिव्स होते थे, उनकी वो मजम्मत करता था। फिर हमने पीडीएम की गवर्नमेंट की मजम्मत की, अभी भी हम शहबाज शरीफ की हुकूमत में, तो हमारा जो पॉलिटिकल स्टांस है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। जी आखिरी सवाल जी प्लीज अब मैं करेंगे फिर हमें जी प्रेड ग्राउंड का ये है कि जी ये हमारी सियासत है, हम डिसाइड करेंगे कि ये हमने अपनी सियासत कहाँ करनी है। मज़ामत की सियासत रियासत की डिक्टेटेशन पे नहीं हो सकती, बिल्कुल। मैडम आपने जो पॉलिटिक्स के एंगल से जो बात हुई है, तो नेशनल असेंबली में सेनेट में खवातीन मौजूद हैं, जो खवातीन सियासतदान हैं, ये आपके तमाम मुतालबात क्यों नहीं पार्लियामेंट में डिस्कस करते? देखिए बहुत सारे जो कवानीन हैं वो के ये जो औरतें हैं, ये ज्यादातर जो औरतें आई हैं, मतलब 8 औरतें जीत के आई हैं, बाकी तो सारी रिजर्व सीटों पे आती है। और आपको पता है कि रिजर्व सीटें जो हैं वो बराह रास्त इलेक्शन के जरिए नहीं होता, वो पार्टीज उनको नॉमिनेट करती हैं, तो जाहिर है वो एक खास तबके की औरत आती है। लेकिन इसके बावजूद मैं आई थिंक आई सलूट दोज वुमेन जिन्होंने पार्लियामेंट में रिजर्व सीटों पे आई। पिछले 2002 से हर पार्लियामेंट में जो भी प्रो पीपल प्रो विमेन कवानीन पास हुए हैं वो इन्हीं औरतों ने मूव किए हैं, इन्हीं औरतों ने वो पास कराए हैं। इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ जो प्रो विमेन लेजिस्लेशंस हैं वो हुई हैं, जिसमें ऑनर किलिंग का बिल है, जिसके अंदर आप देखें कि इसका एंटी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और इसी तरह अभी चाइल्ड मैरिज का बिल, डोमेस्टिक वायलेंस बिल, ये सब औरतों ने किए हैं। अच्छा, एक मैं चाहूंगी कि क्योंकि हमारे दरमियान किश्वर नहीद साहबा आ गई है एंड आई थिंक वी आर वेरी वेरी थ्रिल्ड टू सी हर, तो हम चाहेंगे कि इससे पहले कि हम इस जो कॉन्फ्रेंस है इसको बाकायदा हम खत्म करें, हम किश्वर नहीद साहबा से कहेंगे यहाँ तशरीफ लाएं और इनकी जो एक बेहद खूबसूरत नज़म है जो हम हर वक्त हर जगह पे वो है कि हम गुनाहगार औरतें, उनसे कहेंगे वो हमारे लिए यहाँ आके पढ़े और उसके बाद हम ओके मैं बुक्स ले लेती हूँ।